Hello everyone, I am Simran Verma. Welcome to my YouTube channel Commerce Made Easy. So, as we all know that the Union Budget for the financial year 22-23 was presented in the Parliament yesterday by our Finance Minister. In this video, we are going to discuss some key announcements made in the budget this year very quickly. Pillars of the budget. इस साल गवर्नमेंट के प्रायोरिटी एरियाज कौन से रहेंगे? फर्स्ट इज पीएम गति शक्ति for seamless multimodal connectivity in the country, financing investments by increased mobilization and allocation of funds in various sectors, energy transition by promoting adoption of electric vehicles and making incremental investments in solar and hydropower, enhancing productivity by supporting startups, MSMEs, and proposing greater employment in the coming years. Apart from this, inclusive development and climate action will be on government's agenda. So this budget in all aspects is an extension of last year's budget. पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान ये गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक मास्टर प्लान है विच वॉज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2021. इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान का एम है टू इंक्रीज सीमलेस एंड मल्टीमोडल कनेक्टिविटी इन द कंट्री में वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कनेक्टिविटी लिंकेजेस बढ़ाना इस प्लान का एम है. And Gati Shakti is a digital platform which brings together the development projects of central ministries. सारी ministries के development projects को एक साथ लेके आएगा ये प्लेटफॉर्म. और इस प्लान का स्लोगन है प्रगति की गति भारत की शक्ति, यानी हमारी कंट्री की स्ट्रेंथ कंट्री के डेवलपमेंट में ही है. इन दिस बजट 7 इंजन्स ऑफ पीएम गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान वर अनाउंस्ड. तो गवर्नमेंट ने 7 एरियाज अपने 7 प्रायोरिटी एरियाज अनाउंस किए हैं जिनमें गवर्नमेंट ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क करेगी इन द कमिंग 5 years. These are roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways and logistics infrastructure. और इनके थ्रू हमारे कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्रीमेंट्स किए जाएंगे. कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने की हैं बजट में. फर्स्ट इज नेशनल हाईवेज को गवर्नमेंट एक्सपैंड करेगी, बढ़ाएगी बाय 25,000 किलोमीटर्स. 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स विल बी लॉन्च्ड. 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन 3 years. A new project, Parvatmala, will be introduced to help in transportation in hilly areas. One railway station, one product scheme will be launched to support local businesses in the railway sector. Multimodal logistics parks at 4 new locations will be opened. Apart from this, metro connectivity and road infrastructure will be given boost by the government through increased mobilization of funds for these areas. So all of these plans will come under the PM Gati Shakti Master Infrastructure Plan of the government. नेक्स्ट हम देख लेते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने बजट में क्या अनाउंसमेंट्स किए हैं. गवर्नमेंट डायरेक्ट MSP पेमेंट्स देगी फार्मर्स को अराउंड 2.37 लाख करोड़ फॉर प्रोक्योरिंग व्हीट एंड पैडी एंड फॉर सपोर्टिंग द फार्मर्स फाइनेंशियली. किसान ड्रोन्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड for monitoring and assessment of crops and spraying insecticides to save the crops. Chemical-free organic farming will be promoted in the coming years and states shall be encouraged to revise syllabus of agricultural universities to meet the needs of zero-budget farming and natural farming. Apart from these, oilseed production will be given a boost to reduce the imports. And as 2023 has been announced as the International Year of Millets, government will boost the production of millets. These were the initiatives announced under the agriculture sector. Because of the COVID pandemic, students ने 2 years of formal education का loss suffer किया है. इसलिए स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश अ डिजिटल यूनिवर्सिटी इन द कमिंग ईयर्स. इट विल बी बेस्ड ऑन द हब एंड स्पोक मॉडल. इसमें स्टेट्स को इनकरेज किया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा टू प्रोवाइड एक्सटेंसिव क्वालिटी कंटेंट इन वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस टू एजुकेट स्टूडेंट्स इन दीज लैंग्वेजेस. अपार्ट फ्रॉम दिस, वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम जो कि गवर्नमेंट का अभी भी है अंडर द पीएम ई विद्या प्रोग्राम. करंटली इट कवर्स ओनली 20 channels. It will be extended to 200 TV channels to give a boost to the digital education in the country. In the health and sanitation sector, a national digital health ecosystem will be rolled out. With the help of this digital system, all the medical records of the citizens will be available at one place online. It will help in the increased availability and accessibility of medical facilities. पैंडेमिक की वजह से लोगों ने काफ़ी लॉसेस सफ़र किए हैं ऑफ लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स. तो लोग फाइनेंशियली भी अफेक्ट हुए हैं, अदरवाइज जो उन्हें लॉसेज हुए हैं उसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी अफेक्ट हुई है. To support these people, a tele-mental health program will be launched.
Apart from this, rupees 60,000 crore will be allocated for the government's Har Ghar Nal Se Jal scheme to increase availability of tap water in all the areas. Under urban development, rupees 48,000 crore has been allocated to the housing sector. PM आवास योजना के तहत ये अमाउंट एलोकेट किया गया है हाउसेज के इंक्रीज कंस्ट्रक्शन के लिए. स्टेट्स को भी सपोर्ट दिया जाएगा अर्बन कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए फॉर मास ट्रांजिट एंड प्लानिंग. एक एक्सपर्ट पैनल फॉर्म किया जाएगा टू रिवैम्प एंड रिन्यू द सिटीज़ और 5 डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी फॉर टाउन प्लानिंग. एक बड़ी अनाउंसमेंट बजट की ये थी दैट द गवर्नमेंट विल रोल आउट इट्स ओन डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपी यूजिंग द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन द ईयर 2022-23 बिकॉज क्रिप्टो करेंसीज को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी रहती है दैट वेदर द गवर्नमेंट विल लीगलाइज इट और नॉट. So putting all that to hold, government announced its own digital currency and it will be issued by the Central Bank, Reserve Bank of India. जैसे कि हमारी गवर्नमेंट का एक मेजर एजेंडा है टू मेक इंडिया डिजिटल इन ऑल दी एरियाज़ एंड गवर्नमेंट डिजिटल इनिशिएटिव्स लेती रहती है, तो उसी एजेंडा को ध्यान में रखते हुए ई पासपोर्ट्स वर अनाउंस्ड इन दी बजट. ई पासपोर्ट्स विद एम्बेडेड चिप्स एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी विल बी रोल्ड आउट इन द ईयर 2022-23. इससे क्या होगा, ई पासपोर्ट्स के थ्रू ट्रैवलिंग जो है इंडियन सिटीजन्स के लिए और भी कन्वीनियंट और ईजियर हो जाएगी, ट्रैवल टाइम कट हो जाएगा और ट्रैवल के हैसल्स भी हमारे लिए कम हो जाएंगे. To promote green transportation and encourage adoption of electric vehicles and boost electric mobility in the country, new battery swapping facility was introduced in the budget. Battery swapping facility क्या है? जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की उसको रिमूव करके उसके एक्सचेंज में एक फुली चार्ज बैटरी लगा दी जाएगी व्हीकल में. इससे क्या होगा, जो चार्जिंग में टाइम वेस्ट होता है वो रिड्यूस होगा, जो कि फ़िलहाल एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, क्योंकि हमारे पास इतना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है. तो इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का और भी ज़्यादा प्रमोशन होगा एंड गवर्नमेंट और भी ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन सेटअप करेगी टू प्रमोट एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड रिड्यूस कार्बन एमिशंस. डिजिटल इनिशिएटिव्स जैसे कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए डिजिटल बैंकिंग गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एजेंडा है. उसके अंडर गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स. ये सेटअप कौन करेगा? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स. किस लिए? डिजिटल पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बूस्ट करने के लिए, ताकि लोग डिजिटली ट्रांजैक्शंस ईजिली कर सकें. इसके अलावा पोस्ट ऑफिस अकाउंट होल्डर्स जो हैं, जिन लोगों के अभी तक पोस्ट ऑफिस में अकाउंट्स हैं, उनको लिंक कर दिया जाएगा विद द कोर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री टू एनेबल देम, ताकि वो लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सके, मनी ट्रांसफ़र कर सके और उनकी भी ट्रांजैक्शंस और भी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएं. सो दीज आर द इनिशिएटिव्स विच आर बीइंग टेकन टू प्रमोट डिजिटल बैंकिंग इन द कंट्री. वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए जो लास्ट ईयर के बजट की स्कीम्स थी उन्हीं को कंटिन्यू रखा जाएगा एंड इंटीग्रेटेड बेनिफिट्स विल बी प्रोवाइडेड टू देम थ्रू मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, आंगनवाड़ीज एंड पोषण अभियान 2.0. तो मिशन शक्ति जो कि गवर्नमेंट का एक मिशन है फॉर एम्पावरिंग वुमेन थ्रू प्रमोशन ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसको और भी प्रमोट किया जाएगा. मिशन वात्सल्य जिसके अंडर काफ़ी सारी स्कीम्स और सर्विसेज रूरल वुमेन को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो कि बैकवर्ड बैकग्राउंड से हैं, जिनका एम्पावरिज्ड बैकग्राउंड है, जिनके पास फाइनेंशियल हेल्प नहीं है, या फिर वुमेन हु लॉस्ट देयर हस्बैंड्स इन कोविड-19. इसके अलावा पोषण अभियान न्यूट्रिशन मिशन को प्रमोट किया जाएगा. न्यूट्रिशन मिशन का सेकेंड राउंड आएगा एंड 2 लाख सक्षम आंगनवाड़ीज विल बी अपग्रेडेड विद बेटर फैसिलिटीज़. आंगनवाड़ीज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव किया जाएगा एंड दे विल बी इक्विप्ड विद बेटर फैसिलिटीज़. In the defense sector, 68% of the defense purchases will be made from the domestic or desi firms to give a boost to आत्मनिर्भर भारत. तो गवर्नमेंट का जो आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम है जिसमें इंडियन फर्म्स को प्रमोट किया जाएगा, उसके अंडर 68% जो डिफेंस की जितनी भी परचेजेस होती हैं वो अपनी इंडियन फर्म से ही की जाएंगी टू प्रमोट देम टू इंक्रीज देयर पोटेंशियल. Defense research and development will be opened up for startups, private sector and academia to boost their potential, and for this 25% of the research and development budget will be kept aside. Private industry will be encouraged to take up design and development of military platforms and equipment. तो मिलिट्री के इक्विपमेंट डिज़ाइन करने के लिए और डिफरेंट मशीनरी डिज़ाइन करने के लिए प्राइवेट इंडस्ट्री को, प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेशन डिफेंस सेक्टर में अलाउ किया जाएगा. Bharat Net project and 5G, all villages in the country will be connected via optical fiber. तो ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी जो अभी भी काफ़ी प्रमोट की जा रही है, उसको इंडिया के सारे विलेजेस में, सारे रूरल एरियाज़ में कनेक्ट करने के लिए और भी ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा एंड इट विल कनेक्ट ऑल द विलेजेस बाय 2025
टू एनेबल अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को और भी ज़्यादा अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाया जाएगा। एंड फुल रोल आउट ऑफ द 5G प्लान विल बी डन बाय द एंड ऑफ द ईयर 2023। स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए और MSMEs जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उन्हें हेल्प करने के लिए लास्ट ईयर तब कोविड पेंडेमिक के टाइम पे गवर्नमेंट ने उन्हें इमरजेंसी क्रेडिट लाइन ऑफर की थी। गारंटी स्कीम थी गवर्नमेंट की जो उसे एक्सटेंड कर दिया गया है एक और साल के लिए अंटिल मार्च 2023। तो इससे MSMEs को काफ़ी रिलीफ मिलेगा एंड इट विल हेल्प देम इन एनहांसिंग देयर प्रोडक्टिविटी। इसके अलावा क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज that is CGTMSC scheme will be revamped and renewed with the required infusion of funds। तो इस स्कीम में गवर्नमेंट और भी ज़्यादा फंड्स इस स्कीम के लिए एलोकेट करेगी, इन्फ्यूज़ करेगी। इससे MSMEs को एडिशनल क्रेडिट मिलेगा ऑफ अराउंड 2 लाख करोड़ रुपीज़। स्टार्टअप्स को भी इनकरेज करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ अनाउंस किया। फर्स्टली जो उन्हें लास्ट ईयर कोविड के टाइम पे टैक्सेशन बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए थे, दे हैव बीन एक्सटेंडेड फॉर 1 more year until March 2023। And defense research and development has been opened up for startups to increase their potential and to increase employment in these startups। Apart from this, startups will be promoted to facilitate Drone Shakti program। गवर्नमेंट का एक ड्रोन शक्ति प्रोग्राम है जिसके अंडर गवर्नमेंट विल एनकरेज एंड फैसिलिटेट कमर्शियल यूज़ ऑफ ड्रोन्स। तो इसके लिए स्टार्टअप्स को एनकरेज किया जाएगा कि वो पार्टिसिपेट करें ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में और गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव में सपोर्ट करें। सो दीज वर द मेजर अनाउंसमेंट्स मेड फॉर द स्टार्टअप सेक्टर। गवर्नमेंट बजट के मेजर टैक्सेशन प्रपोजल्स देख लेते हैं। फर्स्टली देयर वर नो चेंजेस इन पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स। तो लोगों को पैंडेमिक के टाइम पे जो ऑलरेडी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने टैक्सेस में कोई चेंजेस नहीं किए, उसे स्टेबल रखा गया है। IT returns can be modified within 2 years from the relevant assessment year। तो अगर आपसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में इंडिविजुअल से कोई मिस्टेक हो गई, कोई एरर हो गई है, सो दे कैन फाइल अ मॉडिफाइड रिटर्न विद इन 2 years फ्रॉम द असेसमेंट ईयर। गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसीज को भी रिकॉग्नाइज किया है बाय टैक्सिंग इनकम फ्रॉम क्रिप्टो करेंसीज एट 30%। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करने के लिए उनका टैक्स डिडक्शन लिमिट बढ़ा दिया गया है ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम फ्रॉम 10% to 14%। अपार्ट फ्रॉम दिस, सरचार्ज ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टू बी कैप्ड एट 15%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे सरचार्ज को 15% पे लिमिट लगा दी गई है, मैक्सिमम लिमिट। मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स जो कोऑपरेटिव्स पर लगता है उसे रिड्यूस कर दिया गया है टू 15%। सो दीज वर द मेजर टैक्सेशन प्रपोजल्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अलावा कुछ और मेजर अनाउंसमेंट्स भी बजट में की गई थी। गवर्नमेंट 60 लाख न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगी थ्रू इट्स मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। क्लाइमेट एक्शन गवर्नमेंट के प्रायोरिटी एजेंडा पे रहेगा इस साल। एंड गवर्नमेंट विल प्रमोट हाइड्रो एंड सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड मेजर एलोकेशंस वर मेड फॉर इट। अपार्ट फ्रॉम दिस, sovereign green bonds will be introduced and funds from these bonds will be used for projects that will help reduce carbon emissions of the economy, and proceeds will be deployed in green projects of the public sector। So these were the major proposals or announcement in the union budget for the financial year 22-23। I hope you find this video helpful. If you like it, give it a thumbs up, share it and subscribe my channel for more such educational videos। And also follow my Instagram page Commerce Made Easy for more such educational content। Thanks for watching. Have a good day. See you in the next video.